You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names, they know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సర్టిఫికేట్ల పంపిణీ కార్యక్రమం. తాండూరు ఆగస్టు 23 మహిళలు స్వయం ఉపాధి సాధించి ఆర్థికంగా స్వావలంబన సాధించాలనే లక్ష్యంతో ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తాండూరు ఆధ్వర్యంలో ఉచితంగా నిర్వహించిన మెహందీ డిజైన్ టైలరింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఆదివారం సర్టిఫికేట్లు పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఖలీముద్దీన్ ముసాయిబ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నేటి సమాజంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్తో పాటు మహిళా సాధికారతకు కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మహిళలు కొత్త నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవడంతో పాటు కంప్యూటర్ రంగంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న కొత్త ఏఐ సాంకేతికతలను కూడా నేర్చుకోవాలని సూచించారు. మహిళలు ఇతరులపై ఆధారపడకుండా తమకు తాముగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించుకొని ఆర్థికంగా స్వతంత్రంగా జీవించాలని ఖలీముద్దీన్ ముసాయిబ్ ఆకాంక్షించారు. ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఫౌండర్ ముజీబ్ ఆధ్వర్యంలో మహిళలు బాలికలకు ఉచితంగా వివిధ నైపుణ్య శిక్షణలు అందిస్తూ అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మేలు చేసే విధంగా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నానని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాలను ప్రతి ఒక్కరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు. పాత తాండూరు సెంటర్ శిక్షణ కేంద్రాలు నిర్వహించిన మెహందీ డిజైన్ శిక్షణను పూర్తి చేసిన 252 మంది, టైలరింగ్ శిక్షణ పూర్తి చేసిన 235 మంది విద్యార్థులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. అలాగే ఎస్ఎస్సి ట్యూషన్లో ఉత్తీర్ణులైన విద్యార్థులను కూడా ఈ సందర్భంగా సన్మానించారు. కార్యక్రమానికి హాజరైన పలువురు మాట్లాడుతూ ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఉచిత శిక్షణ కార్యక్రమాలు మహిళలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా మహిళల కోసం స్వయం ఉపాధి, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు. యువత, మహిళలు ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని తమ భవిష్యత్తును మరింత మెరుగుపరుచుకోవాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాండూరు వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు మహమ్మద్ షఫీస్, జనరల్ సెక్రటరీ అడ్వకేట్ ఎంఏ మతీన్, ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ట్రెజరర్ వసీం భారీ, ముఫ్తీ హుస్సేన్ సాహెబ్, ఖాజా రియాజుద్దీన్, సయ్యద్ అబీబ్ అలీ, సయ్యద్ అక్బర్, ముదస్సిర్ బేగ్, మహమ్మద్ ఫయాజ్, మహమ్మద్ అమీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహిళలకు ఉచిత నైపుణ్య శిక్షణ, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తూ ఏఎస్జీఎంకే చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కొనసాగిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలపై కార్యక్రమానికి హాజరైన వారు ప్రశంసలు వ్యక్తం చేశారు.
सादिया बेगम रूबिया निखत खान तस्कीन फातिमा अनम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आए अपने सर्टिफिकेट लें। मोहम्मद हुसैन साहब उसका अंजुम बेगम शीरीन सुल्ताना महक डाइस पर तशरीफ फरमा एएसडीएम के चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब कलीमुद्दीन हुसैन साहब और सदर तांडूर वेलफेयर सोसाइटी अंडर द गार्डियनशिप ऑफ एएसडीएम के चैरिटेबल ट्रस्ट जनाब मोहम्मद शफी साहब और काउंसलर वार्ड नंबर 14 आप काउंसलर किए वार्ड नंबर 14 के साथ ही साथ मुफ्ती हुसैन साहब और वसीम वाली साहब मुदस्सिर बेग साहब मुजफ्फर साहब और बिलखुसूस मेरे सामने मौजूद पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो प्रोग्राम है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम खासकर जो खवातीन हमारे पास टेलरिंग सेंटर टेलरिंग कोर्स जो ट्रस्ट में चल रहा था वो टेलरिंग कोर्स जिन्होंने मुकम्मल किया उनको सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और साथ ही साथ मेहंदी डिज़ाइनिंग का कोर्स जिन्होंने भी मुकम्मल किया है उनको भी इंशाल्लाह सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जनाब मोहम्मद मुजीब खान साहब की बेहद ज़्यादा मसरूफियात की वजह से वो आज भी यहाँ पर मौजूद नहीं हो सके। उनकी जगह पे उन्होंने अपने दामाद साहब जनाब कलीमुद्दीन हुसैन साहब को यहाँ पर रवाना किया और इंशाल्लाह ये आपसे मुखातिब होंगे। आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए सबसे पहले मैं हाफिज़ मुजफ्फर साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से फरमाएं। आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से हुआ है। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सदर तांडूर वेलफेयर सोसाइटी जनाब शफी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो हमसे मुखातिब हों। वमा असाबकुम मिन मुसीबा व बिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैच में मौजूद आज के मेहमान खुसूसी हुसैन कलीम साहब जनरल सेक्रेटरी एएसडीएम के और हमारे एएसडीएम के चैरिटेबल ट्रस्ट के पहले तो मैं मुजीब खान साहब की तरफ से माजरत चाहता हूँ इसलिए कि ज़्यादा मसरूफियात की वजह से आज भी पोस्टपोन और माजरत भी चाहे हैं कि आप लोगों से कि ज़्यादा मसरूफियत की वजह से वो आने वाले फिर कुछ 25-30 किलोमीटर के बाद वापस फिर हैदराबाद पहुँचे हैं क्योंकि ज़्यादा मसरूफियात परसों ही उम्रा से आने के बाद ज़्यादा मसरूफियात रहने की वजह से वापस चले गए और खुसूसन हमारे मदीन साहब से ये कहकर माजरत चाहे हैं कि आइंदा महीने में मैं ज़रूर आऊँगा क्योंकि अब तक 2 मरतबा हुआ क्यों हमारे मुजीब खान साहब इससे पहले हज को जाके आने के बाद भी ज़्यादा मसरूफियात रहने की वजह से नहीं आ सके और परसों उम्रा से आए 2 दिन पहले मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके लेकिन इसका अंदाज़ा है इंशाअल्लाह आने वाले महीने में आएंगे और यही उनके जहन में रहने की वजह से क्योंकि नियामे का जो ये रहता सदमा रहता मैं जानता हूँ कि उन्हें आने के बाद हम पूरे इंचार्ज जिम्मेदार एक रिचार्ज होंगे एक अपने आप को एक तकवीत महसूस करते थे आज ज़रा भुल्ला भुल्ला सा महसूस हो रहा है लेकिन आइंदा महीना वो फुलफिल करेंगे और यहाँ से जो मुजीब खान
साहब की शुरुआत हुई है, इसलिए फोकस ज़्यादा तांडुर कुछ करते होंगे, क्योंकि इनकी पैदाइश भी यहाँ की हुई है, यहाँ से पढ़ाई हुई है और यहाँ से बिजनेस चालू करके थोड़ा परेशान होकर चले गए, हैदराबाद शिफ्ट हो गए। लेकिन मुसीबत का अंदाज़ा उनको है, लेकिन परेशानी में भी कभी भी नाशुक्री के अल्फाज नहीं निकाले। तांडुर वालों के लिए हमेशा वो अच्छाई सोचते हुए एक इधर ही ख्याल उनका ज़्यादातर का है, ये ट्रस्ट कायम करने का ख्याल हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रस्ट कायम हुआ। और यहाँ मुसीबत से कर्जे होने के बाद चले गए, लेकिन कुरान की जो आयत है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, क्योंकि जब भी उनको मुसीबत आती तो सब्र करते थे, क्योंकि सब्र करने में और शुक्र करने में, और सब्र से सब्र करना है और शुक्र करना है, शुक्र करने से अल्लाह ताला और नेमतों में इजाफा देता है। और नाशुक्री करेंगे तो इसके अलावा भी अल्लाह ताला फरमा रहा है, नाशुक्री करेंगे तो मेरा अजाब बड़ा सख्त है। क्योंकि मुजीब खान साहब यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा परेशान होके गए थे, वो परेशानी का अंदाज़ा है कि तांडुर वाले परेशान ना हो, बल्कि खुद कफील बने, जिसकी वजह से टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइनिंग ये सब कोर्सेज जो है कंप्यूटर खुद कफील बनने के लिए है। क्योंकि हम इससे पहले भी बोला, कुछ चीज़ें कीमतों से मिलती हैं, लेकिन हमारे मुजीब खान साहब किस्मत से मिले हैं। तांडुर के लिए एक नेमत है, क्योंकि ये नेमत हमें फ़ायदा उठाना है। इस नेमत से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, क्योंकि हमारे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब तफसील से बयान करेंगे, और आइंदा के लिए मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो मुजीब खान साहब की कमी है वो आप भरपूर करें, जो मुझे मौका दिया गया है। आज का जो प्रोग्राम है, इसमें जनाब मुजीब खान साहब खुद बजाते खुद तशरीफ लाने वाले थे। कल ही बात हुई थी कि अच्छा ग्रैंड सक्सेस करना है प्रोग्राम, सभी लोगों को जमा करो बोल के कल से परसों से कोशिश चल रही थी। तो हुआ ये कि कुछ खास मसरूफियत की वजह से आधे रास्ते से फिर लौटना पड़ा, जैसा जनाब शफी साहब आपके सामने रखे हैं। और ये जो हमारे शफी साहब हैं, ये हमारे लिए सरपरस्त आला हैं। मुजीब खान साहब अल्लाह जनाब मुजीब खान साहब की क़यादत में, उनके नए आने की सूरत में जो कुछ भी जिम्मेदारी है वो जनाब शफी साहब की ज़ेर सरपरस्ती ज़ेर निगरानी प्रोग्राम सोते हैं। तो लिहाजा आप भी आए हैं, इसी फिक्र से आए हैं कि ताकि खान साहब की कमी दूर हो जाए नियाली की वजह से। लिहाजा वो आप सबसे माज़रत खा हैं, और उनका वादा है कि आने वाले अगले महीने में पूरा वक्त दे दूँ बोल के ये वादा किए हैं, और ग्रैंड सक्सेसफुली बहुत बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, सबको गैदर करेंगे बोल के उसमें इरादा जाहिर करें। कल हमारी बात हुई, उसके बाद फिर बात ये हुई कि आपकी वजह से पूरे ख़वातीन और जमा हो रहे, सब लोग जमा हो रहे, आप ऐसा इमरजेंसी है बोल के नहीं आ सके तो फिर क्या सोचेंगे आईएसओ वाले। तो बात ये हुई कि मियाँ अगर मैं नहीं आ सका तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से नियाबत में मैं हमारे दामाद साहब जनाब कलीम साहब को भेजूं बोल के बोले हैं। और सुबह सुबह जनाब कलीम साहब सदर साहब के नहीं आने की वजह से, डायरेक्टर साहब जनाब मुजीब खान साहब मसरूफ होने की वजह से उनकी नियाबत में आप तशरीफ लाए हैं। तो लिहाजा मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। जनाब मुजीब खान साहब के नहीं आने की वजह से जो कमी महसूस हो रही थी, इंशाअल्लाह आपके दामाद साहब उस कमी को पूरी करेंगे। और जब आप आपके सामने इजहार ख्याल करेंगे, आप सभी हजरात के लिए, ख़वातीन के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, इंशाअल्लाह वो आप उन्हीं से सुनेंगे जो मुजीब खान साहब आने वाले अगले महीने में आप लोगों के लिए देने वाले हैं। तो अलगज़ ये जो हमारा ट्रस्ट है, आप इसमें जुड़े हैं, इसमें टेलरिंग है, उसके अलावा मेहंदी डिज़ाइनिंग है, फिर ट्यूशन्स है। अभी वहाँ पे छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ 10th के बच्चियों की, गुलपोशी हुई बच्चियों की, माशाल्लाह आपके दामाद साहब भी बहुत खुशी का इजहार करें, सब लोगों को खुशी हुई, हमारे कौम के बच्चे आगे बढ़ रहे। ये जो ज़माना है, ये जो दौर है, AI का दौर है। लिहाजा हमारे पास अगर हुनर है,
काबिलियत है, एबिलिटी है, तो दुनिया कबूल कर दी। कई खवातीन जो है ना नकाब में रह के, पर्दों में रह के, शरीयत के पाबंद रहते हुए अच्छी खासी कमाई हो जाती, उसके अंदर थोड़ा स्किल्स डेवलपमेंट कर लिए। और ये ऐसा ट्रस्ट है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम है, कोई फीस देना नहीं है। मुजीब खान साहब की ये ख्वाहिश है दिली कि भाई हमारे बच्चियाँ आगे बढ़ना, खुद कफील होना, खुद मुख्तारी हासिल होना, उनको खुद कमा सकना, बकदरे कफाफ जिंदगी गुजारने के लिए जितनी आमदनी की ज़रूरत होती, औरतें बच्चियाँ अपने पैरों पर ठहरना, कम से कम उतना कमा सकना, किसी के मोहताज न रहना, ये उनकी सोच है। तो लिहाजा ये जो भी अखराजात होते तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए तो खाली ट्रस्ट के एम्प्लॉइज को पैसे देना पड़ता, हर महीने का वो खर्चा है, उससे ज़्यादा खर्चा है, कोई गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, पूरा अपने जेब खास से अपने खर्चे से मुजीब खान साहब ये खर्चा कर रहे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ सके, कौम तरक्की कर सके, पसमानदा तबका आगे बढ़ सके। मैं गरीबी देखा सा हूँ, मैं तकलीफ देखा सा हूँ, गरीबी में औरतें वालिदैन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, मैं बहुत दौर देखा सा हूँ। आज अल्लाह मेरे को ऐसे मुकाम पे लेके आया, उसका फजल है कि मैं 4 बच्चों को पढ़ा के उनको काबिल बना सकूँ। जब अल्लाह मेरे को ये मुकाम दिए, ये ताकत दिए, तो मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ज़िंदगी में कौम के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ आगे बढ़ना, बल्कि उनकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पे अमल कर रहे हैं। लिहाजा आप जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं उनकी ख्वाहिश को पूरी कीजिए ताकि हमारी कौम आगे रोशन ज़िंदगी कर सके, रोशन मुस्तकबिल हो सके। तो उनकी ख्वाहिश थी आगे उनके हाथ से सर्टिफिकेट देने की, उन्होंने नहीं आ सके, अगले महीने में इंशाल्लाह वो कभी पूरी जो रही आज इंशाल्लाह वो भी पूरी होगी। आप जो भी ये ख्वाहिश से आए हैं कि खान साहब आने वाले थे नहीं आ सके, आप दिल आजूदा मत करिए, इंशाल्लाह जब खान साहब आएंगे वहाँ भी ये बात मैं किया हूँ कि हमारे जनाब कलीम साहब जो आपके दामाद साहब हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप सब खवातीन की तरफ से, माँ बहनों की तरफ से मुजीब खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाइए कि 2 मरतबा हम लोग जमा हुए हैं, आप मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके, कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अगले महीने जब आएंगे तो इंशाल्लाह सुबह 9 बजे से शाम में 9 बजे तक पूरा टाइम खान साहब का लेना है, हमारे लेना है नहीं लेना है, बोलिए आप लेना है ना। आप लोग आए, खुशी से आए थे, कुछ इमरजेंसी इन केस ऑफ इमरजेंसी नहीं आ सके, अगली मरतबा इंशाल्लाह कौन मुजीब खान साहब का टाइम सुबह 9 बजे से शाम में 9 बजे तक लेना चाह रहे, एक बार हाथ उठाइए आप, सब तैयार है ना। और इंशाल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है, आपसे भी गुजारिश है, थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए, एक दिन हमारे लिए निकाले तो सब औरतें खुश हो जाती, जितने लोग जमा हुए हैं। नियाले मुजीब खान साहब नियाले बोलते कोई नाराज नहीं है, जब आ जाएंगे तो ये नाराजगी भी दूर हो जाएगी और इंशाल्लाह हमारी खुशी में और इजाफा हो जाएगा। तो लिहाजा आप लोग आगे बढ़िए, तरक्की करिए। देखो इतना अच्छा ये जो मौका मिला, ये जो ट्रस्ट है, गवर्नमेंट भी एक ऐसी सहूलत नहीं देगी, हम लोग खुशकिस्मत है क्या लोगों के पास पैसा नहीं है, समझे करोड़ों रुपए हैं लोगों के रखे हुए, बीवी बच्चे भाई जिंदगी बोलते ऐसा कौम के लिए बांट देना दे देना बहुत कम लोग होंगे दुनिया में, उंगलियों पे गिन सकते हैं हम, सबका दिल बड़ा नहीं होता। अल्लाह जिसको तौफीक दिए उसको तौफीक मिलती, लोगों मेहनत करते कमाते करते, मैं मेरी बीवी मेरे बच्चे बोलते, अम्मा बाबा भी नहीं बोलते, बहना भी नहीं बोलते, भाया भी नहीं बोलते, उनका मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ भाई, मैं तो मेरी बीवी बच्चे बस है, उनका मैं कहीं उनकी मेरे को क्या जरूरत है बोलते ना भाई। देखने में आ रहा मुआशरा कैसा हो गया, ये ढकी छुपी बात तो नहीं है। जैसे ही शादियां हो गए बहना भाई अलग हो जाते, ऐसे ऐसे लड़ाया है 5-5 साल तक, 10-10 साल तक, खाली जनाजों में शिरकत करे, सो शादियों में भी नहीं आए, उसके अलग नहीं भाई हमारे उनके नहीं बनती भाई, वो उनका उनके साथ हमारा धक्को भाई, वो मुनीरा खाला से मुश्किल है आए तो यहाँ के से वहाँ के उससे वो जायदा बुकू आए तो खाली निकलता लड़ाया बच्चा था, तो भाई हम दूर हो गए भाई उनसे, वहाँ होता नहीं होता घरों में बोलो भाई ना बहनों को नहीं पूछ ले रहे, भाया बहनों का हक मार रहे, हिस्सा मार रहे, रोज पेपरों में फोटो में जाके देखो खाली ये चफेस, खाली ये लड़ाया पंचायत है। कौन क्या नहीं, मुजीब खान साहब किधर गए, तांडुर से परेशान होकर चले गए मुजीब खान साहब, कोई खुशी से नहीं गए, और उन्होंने ये ऐलान करे, मेरे खानदान वाले भी साथ दे दिए। आप साहब जब उन्होंने बयान करे थे पूरी जिंदगी की दास्तान रखे, कोई भी साथ नहीं दिए भाई, उन्होंने परेशान है, कहाँ उनकी परेशानी हम करा लेंगे। मैं अल्लाह पे तवक्कल करके शहर बदल हो गया, तांडुर छोड़ के चले गए आप साहब भाई, हिजरत करा यहाँ से। उसके बाद अल्लाह का करम रहा, मेरी किस्मत अच्छी रही, अल्लाह मेरा साथ दिए, मैं और तरक्की करा, जब आगे बढ़ा मैं वो तमाम
तमाम चीजों को भुला दिया, फिर वापस आया, पहुंची वहीं पे खास जहां का खमीर था, जहां से निकला था, फिर वहां पे चाया आके वहां की गरीबी दूर होना, वहां के बच्चे आगे बढ़ना, तरक्की करना। मैं जैसा जिंदगी में सफल हुआ, मैं जैसा जिंदगी में परेशान हुआ, ये आने वाली नस्ल ने परेशान होना बोल के पलट के वापस आए। ये दौर ऐसा है, भाई बहन को नहीं पूछ रहा, भाई बहन को नहीं पूछ रही, पूछने वाले पूछ रहे होंगे लेकिन अक्सरियत नहीं पूछ रहे, भाई तुम्हारी जिंदगी क्या तुम, हमारी जिंदगी क्या तुम। ना मुजीब खान साहब हमारे रिश्तेदार हैं, ना दोस्त हैं, किसके रिश्तेदार हैं यहाँ तो एक आध दो के होंगे, सबके तो नहीं है ना भाई। उसके बावजूद रिश्तेदारी से ज्यादा फर्ज निभा रहे मुजीब खान साहब, रिश्तेदारा नहीं निभा रहे भाई, वैसे आ रहे हमारी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस कर रहे, हमारी जिगर की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करना वो इंसानियत है। उनको क्या जरूरत है ट्रस्ट खोल के इतना एम्प्लॉइज को रखे, पैसे दे के, उनकी जिंदगी में बीवी बच्चों में उनकी लाइफ में खुश है ना भाई, मतलब नहीं है ना हम लोगों से। उसके बावजूद ये कौम का दर्द है, तकलीफ है, सबको मौका नहीं मिलता, लिहाजा हम कदर कर लेना ऐसे लोगों की, कितनी भी तारीफ की जाए, कितना भी उनकी तारीफ करो, उनकी मदह सराही करो, कम है। ऐसी शख्सियत जो जनाब शफी साहब बोले, मुजीब खान साहब तांडूर वालों के लिए नेमत है, नेमत गैर मुतरक्कबा है, यानी वो चीज जिसका हम तसव्वुर नहीं करे थे वो चीज का हमारे को मिल जाना। मिसाल के तौर पे किसी की शादी हुई, राइट, उनके हस्बैंड को उन्होंने बोले समझो मेरे को एक तोला सोना दिलाओ, बोले उनके शौहर बोले चलो भाई मेरी बीवी है ना, मैं खुशी में उनको गिफ्ट दे दूं बोल के जेवलरी की दुकान पे ले लेके जाके उनको अगर 4 तोले का सोने की कोई चैन दिला दी है, कंगन या चूड़ियां दिला दी है, तो कितने खुश हो जाते हैं, होते नहीं होते? कौन कौन खुश होते बोलिए? सब खुश होते ना। इसको नेमत गैर मुतरक्कबा बोलते हैं, यानी हम एक्सपेक्ट करे थे, एक चीज की उम्मीद करे थे, उससे 4 गुना ज्यादा हमारे को मिल जाना, जिसकी हम उम्मीद नहीं थी वो चीज का मिल जाना, उसको नेमत गैर मुतरक्कबा बोलते हैं उर्दू में, अरबी में। यानी अल्लाह की तरफ से वो हमको नेमत मिल गई, हम छोटे थे छोटी चीज मिल गई बड़ी चीज। ऐसा ये मुजीब खान साहब, ये जो जीएम के ट्रस्ट के ये लोग हैं, हमारे लिए नेमत गैर मुतरक्कबा है, जिसकी हम उम्मीद नहीं करे थे, अल्लाह वो नेमत हमारे को दिए है। लिहाजा हमारा फर्ज है ट्रस्ट का साथ देना, इनकी खिदमत करना, जितना हो सके ट्रस्ट के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, हमारी कौम तरक्की करेगी। और सिर्फ मुसलमानों के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी ये ट्रस्ट से जुड़ना चाहे जुड़िए, और जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। आप भी अपने ज्यादा से ज्यादा खानदान में, सोसाइटी में, अपने महलों में लोगों को जमा करिए, जोड़िए। कितने लोग जुड़ सकते हैं? मेरी जिंदगी का मकसद आपसा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस लेके आना, उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाना, उनकी गरीबी दूर करना, उनको स्टैंड करना बोल के ये दिन रात उनकी मेहनत है, ये कोशिश है। आधे रास्ते तक आते आप वापस गए बोले तो आप अंदाजा लगाइए उतना अहम काम था, बोले वैसा गए ना, उसके बावजूद क्या बोले अगर मैं नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई, आज जबान दे दिए थे, आज प्रोग्राम करना है बोले थे, जितने लोग आए सबको बुला के ये बात बोलो, अगले महीने में क्या भी बोलते मैं वक्त निकाल के आ रहा हूँ। एक दिन पूरा यहाँ के लोगों को, पुरान तांडू के जितने खवातीन हैं, जितने जुड़े हुए हैं, सबको मैं टाइम दूंगा बोल के बोले, और सबको बोलो मैं उम्रे को गया था, सबके लिए दुआ करा, पूरी कौम के लिए दुआ करा, मेरे लिए भी सबके बोलो, सबको दुआ करो बोल के बोले। तो लिहाजा बहुत बड़ी शख्सियत का साया हमारे सिर पे है, हम उनकी कदर करना, उनके मातहत में जितने लोग हैं, जैसे आपके दामाद साहब, आप भी यूके से पढ़े हुए हैं माशाल्लाह, आप भी वो एजुकेटेड पर्सन है, आप दिखने मॉडर्न है माशाल्लाह, लेकिन एजुकेटेड पर्सन है, बहुत काबिल शख्सियत है। जब आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। उसके अलावा हमारे वसीम साहब, दिन रात हमारे वसीम साहब तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज कैसा रहते, सुबह उठते ही थम लगाना पड़ता, थम नहीं लगाए तो उनको सैलरी नहीं मिलती, वो 9:30 बजे वक्त हम मानना पड़ता, फिर जाते वक्त हम, वो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय रहता उसको उतनी फिक्र नहीं होगी जितनी माशाल्लाह हमारे जनाब वसीम साहब को हमारे ट्रस्ट के बारे में फिक्र है, इसको आगे बढ़ाना, ट्रस्ट कैसा तरक्की करना। उसके अलावा मतीन साहब है, शफी साहब है, सबके नाम तो नहीं रह सकते, जितने ये जो गैंगस्टर जितने भी है ना, सब आप लोगों की खिदमत में है, कहीं को आपका फ्यूचर ब्राइट होना, आप आगे बढ़ना, तरक्की करना बोलिए, तो लिहाजा आप भी साथ दीजिए। आज नहीं आने की वजह से दिल आजूदा मत करिए, इंशाल्लाह आने वाले अगले महीने में हम अच्छा बड़ा प्रोग्राम करेंगे। और ये ट्रस्ट का ऐसा नाम होना, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये बच्ची कहाँ से पढ़ी हुई है, कहाँ से ट्रेंड है ये बच्ची, बोले तो बबांगे दोहुल अगर नाम निकलेगा तो इंशाल्लाह जीएम के ट्रस्ट का नाम हर एक की जुबान पे आना। आप वैसा साथ दीजिए, वैसी मेहनत कीजिए, मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे ट्रस्ट को
اور یہ جو حضرات ہیں جناب مجیب خان صاحب کو تمام کو نظر بس سے بچائے، رس کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، دن چگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے. اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہاں کی جو بے کس مجبور بے سہارا جو لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنا، ان کو اپنا ہاتھ پکڑ کر ان کو آگے بڑھانا، ان کو سیلف امپلائڈ بنانا، یہ کوئی نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے. محترم خواتین، آپ جانتے ہیں جناب محمد مجیب خان صاحب کا جو خواب ہے نا، وہ خواب ایجوکیشن کے تعلق سے ہمارے جو نوجوان نونہال ہمارے بچے جوان بچے جو اسکولس اور کالجز میں تعلیم حاصل کریں، ان کے تعلق سے بالخصوص ان کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا، اعلیٰ تعلیم دلانا اور ٹیلنٹڈ بنانا، ان کو اس قابل بنانا کہ یہ بچے آج کے جو ہمارے بچے ہیں یہ مستقبل میں جو ہے نا اپنے گھر کی ہی نہیں اپنے ملک کی جو ہے نا رہنمائی کر سکیں، ملک کو کی ترقی میں اپنا حصہ اپنا کردار ادا کر سکیں، وہ IAS آفیسر بنے، IPS آفیسر بنے. اس طرح سے یہ بچے جو ہے نا اپنی قوم کی اور ملک کی دونوں طرح سے خدمت کر سکتے. یہ مجیب خان صاحب کا خواب ہے. اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے محمد مجیب خان صاحب کا عزم ہے، ان کا ایک ارادہ ہے، ان کا خواب ہے کہ تانڈور کے اندر جو ہے نا KG سے لے کے 7th کلاس تک جو ہے نا یہاں پر ایک اسکول قائم کیا جائے انگلش میڈیم، جس میں جو ہمارے نونہال ہیں انگلش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور ایسی تعلیم حاصل کریں کہ ان کا مد مقابل کوئی نہ ہو. یعنی ہمارے بچے ایسے ٹیلنٹڈ ہوں کہ ان کا مقابلہ جو ہے نا دوسرے بچے بہت مشکل سے کر سکیں. تو ایسی ٹیلنٹ ہمارے لڑکی اور لڑکیوں میں مجیب خان صاحب پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ حیدرآباد سے تانڈور پلٹ کر اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر ہمارے جو بے کس اور مجبور خاندان ہیں، یعنی جو بلو پاورٹی لائن کے رہ رہے ہیں، یعنی جن کے پاس ذرائع معاش بہت کم ہے، آمدنی بہت کم ہے، لیکن جن کے بچے بہت اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، ایسے بچوں کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو ان کا ایک روشن مستقبل بنانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ ہی ساتھ ان کا جو دوسرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو قوم کی خواتین ہیں، بالخصوص خواتین کو وہ سیلف امپلائڈ بنانا چاہتے ہیں. یعنی سیلف امپلائڈ یعنی آپ خود اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو سکیں اور اپنے گھر کو سنبھالنے کی وہ صلاحیت رکھ سکیں، آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا کر سکیں. اسی لیے جو ہے نا اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے خاص کر یہ جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ کے اندر پھر ہمارا جو ٹرسٹ ہے اولڈ تانڈور میں ایک برانچ ہے، اس میں جو ہے نا خواتین کو سیلف امپلائڈ بنانے کے لیے ڈیزائننگ کے کورسز، ٹیلرنگ کے کورسز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان بچے ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، ان کو ایڈوانس بنانے کے لیے، ان کو جو ہے نا آج کا جو دور ہے AI کا دور، جیسا کہ آپ نے سنا، اس میں جو ہے نا وہ کمپیٹ کر سکیں اپنے آپ کو اور اس قابل بنا سکیں اس دنیا کے کہ وہ اپنا ایسا مظاہرہ پیش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے نا کمپیوٹر کے جو یہ دور چل رہا ہے اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے نا وہ تعلیم حاصل کریں، ٹیلنٹڈ بن سکیں اور اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے گاؤں کی، اپنے شہر کی جو ہے نا اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں. اسی لیے جو ہے نا مجیب خان صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، کئی لوگ ہیں پیسے والے لوگ بہت ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو معاشی طور پر بہت زبردست طریقے سے مستحکم کیا ہے. تانڈور میں بہت سارے لوگ ملیں گے، تانڈور نہیں، تانڈور کے جو تانڈور چھوڑ کر ہم اگر دوسرے ضلعوں میں جائیں گے، ڈسٹرکٹس میں جائیں گے، وہاں پہ بھی آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو کھربوں پتی اربوں پتی ہیں، لیکن اللہ نے کچھ ہی لوگوں کو جو ہے نا ایسا دل دیا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف اپنے سلیکٹڈ بندوں کو جو ہے نا یہ کام کرنے کا موقع دیتا ہے. اللہ جس کو پسند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے، ان کو ایسے کام کرنے کی جو ہے نا صلاحیت عطا کرتا ہے. اسی لیے مجیب خان صاحب جو ہے نا آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کو ٹیلنٹڈ بنانے کے لیے، آپ کو سیلف امپلائڈ بنانے کے لیے جو ہے نا حیدرآباد سے پھر جو ہے نا رخ تانڈور کو کیے ہیں اور آپ کے لیے جو ہے نا دن رات جدوجہد کر رہے ہیں. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا مجیب خان صاحب آ رہے ہیں، نہیں آنے کی وجہ ان کا بزنس ہے. وہ اگر وہاں پر بزنس کر رہے تو یہاں پر ہم جو ہے نا ہمارے بچوں کو کمپیوٹر کورسز کرا رہے ہیں، یہاں پر آپ لوگ ٹیلرنگ سیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ لوگ مہندی ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے کورسز آپ لوگ یہاں پر کر رہے ہیں. اور کہیں جو ہے نا بچوں کے قریب کم و بیش
100 यतीम बच्चों की फीस अदा कर, वो किस लिए अदा कर रहे खान साहब? इसलिए अदा कर रहे कि वो वहाँ पर मेहनत कर रहे, वो उनका मानना ये है कि मैं वहाँ पर हैदराबाद में मेहनत करूँगा तो यहाँ पर हमारी बहनें जो हैं यहाँ पर सुकून की सांस ले सकेंगी, सुकून की नींद कर सकेंगी। इसीलिए जो है मुजीब खान साहब वहाँ दिन रात सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे, आप लोगों की फिक्र में मेहनत कर रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है ना मुजीब खान साहब को अपनी दुआओं से नवाजेंगे, आप अपनी दुआओं में खान साहब को याद रखेंगे, उनको, उनके अहले खाना को, उनके ख़ानदान को, उन सबको जो है ना आप अपनी दुआ में याद रखेंगे। मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से ज़्यादा वक्त ले लिया। इसके बाद मैं जनाब मोहम्मद मुजीब खान साहब के जो दामाद साहब हैं वो ASDM के मैं जानता हूँ आप लोग सब मुजीब चाचा के लिए मतलब उनको एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ आने के लिए, बट जैसा सब लोगों ने बताया कि कुछ इमरजेंसी होने, कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से उनका आना थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इंशाल्लाह यहाँ आज भी होऊंगा, आगे भी कभी भी जब भी आप लोग को जरूरत रहेगी मैं इंशाल्लाह वो करूँगा। मेरा आने का रीज़न ये भी है कि मतलब मैं देख चुका हूँ कि हम लोग ने ट्रस्ट जब से कायम किया है, जब से हर किसी के लिए, जैसे कि बॉयज़ है, गर्ल्स है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एज लिमिट, कोई भी आ सकता है, सीखता है। बट मैं जब उल्टानडोर में देखा हूँ और यहाँ पे भी देखा हूँ, मैक्सिमम 90% आप लोग लेडीज़ की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। वो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं अपने अहलिया को भी कोशिश करता हूँ कि कोई अपनी लेडीज़ इंडिपेंडेंट बनना अपनी लाइफ में, खुदा ना खास्ता अपनी लाइफ में कुछ भी हो सकता आगे किसी ना हो, लेकिन अपन अपने पैरों पे खुद अगर आप कुछ करने के काबिल रहे, उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह खुशी ये हुई, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लेडीज़ की स्ट्रेंथ थी। तो इससे ये दिख रहा है कि अपने ख़वातीन सीखना बहुत चाह रहे हैं और सीखिए, उसको ज़ाया मत करिए। इंशाल्लाह सीख के आप लोग जैसे कि स्किल सीखिए, जैसे कि आप एजुकेशन वगैरह तो सब करते हैं, मतलब 10th पढ़ते हैं, इंटर है, डिग्री है, उसके साथ साथ आपको स्किल डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट इन द सेंस मतलब आप लोग अपने स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए। जैसे कोई भी इंटरव्यू फेस करने के लिए पहला आपका बैरियर रहता है इंग्लिश सीखना, तो उसके लिए आप लोग फ्लुएंसी में, अभी यहाँ पे मिल रही है आप लोग को स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, बट मैं अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है तो मैं उस पर गुजारिश करूँगा अपने टीचर को, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ पे लगा के आप लोग इंग्लिश अपने माहौल में भी बात करना शुरू करिए, क्योंकि मेन यही है कि सीखते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। तो आप लोग ही फ्रेंड सर्कल में है जो भी है, आप लोग बात करना चाहिए, तो इससे आप लोग एनवायरनमेंट के थ्रू आप लोग उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो फर्स्ट हो गई आपके स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, प्लस सेकेंडरी ये हो गया कि आप लोग अपने कुछ, आजकल एआई का ज़माना है, मतलब एआई के बहुत सारे कोर्सेस है। अब आप लोग छोटे छोटे चीज़ें फ़ोन में भी आ गया एआई, आप लोग तो उसको सही यूज़ करने का तरीका सिखाते हैं वो कोर्सेस, तो उससे आप लोग पैसा भी आप मतलब कोई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कंप्यूटर टीचर से भी टच में आके एआई के कोर्सेस अगर आप लोग इंटरेस्टेड है आप लोग अप्रोच करिए, मतीन भाई है और हमारे वसीम भाई हमको बोलिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो अपन उसके ऊपर वर्कआउट करके एआई के कोर्सेस आप लोग करिए, जिसके थ्रू आप लोग अपने स्किल्स डेवलप करके आप लोग कल के दिन हैदराबाद भी आके अगर कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी करना चाह रहे हैं, आप अपने नखाबा में रह के, मैं भी कर रहा हूँ कॉर्पोरेट में जॉब वगैरह करा हूँ, तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट हो या डे शिफ्ट हो, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती रहती है कॉर्पोरेट लेवल पे, तो आप लोग भी आके वो चीज़ ऑप्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी अगर आप लोग को गाइडेंस चाहिए तो इंशाल्लाह मैं हमेशा हाजिर हूँ। मतीन भाई भी है, उनको भी इनको बाहर का एक्सपोजर है, तो मेरा मकसद यही है कि लेडीज़ आप लोग माशाल्लाह इतना इंटरेस्ट से आगे है, तो ये चीज़ को ज़ाया नहीं करना है, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग आपके लिए 2 कदम आगे बढ़ के आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरी ख्वाहिश यही है आप लोग को, अगर ये एआई का है और कंप्यूटर क्लासेस में सिर्फ बेसिक सीखे होंगे आप लोग यहाँ पे एक्सेल वगैरह, उसको थोड़ा और एनहांस करके ये एआई टूल्स यूज़ करना आप लोग सीखिए, प्लस इंग्लिश। आप ये 2 चीज़ों पे इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगे तो आप लोगों को ईजी, आप लोगों को मिनिमम 20,000 की सैलरी के हिसाब से आपको जो वहाँ पे जॉब मिल सकती है हैदराबाद में कॉर्पोरेट लेवल पे। तो मेरी यही गुजारिश है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लोग अच्छे से ग्रैब करिए। माशाल्लाह जो स्ट्रेंथ ऐसी यहाँ पे आई है आप लोग क्लासेस में भी मेंटेन करिए। इंशाल्लाह वही है मेरा बोलने का मकसद, यही था कि इसको मेंटेन करिए, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको ग्रैब करके अपना फ़ायदा उठाइए। इंशाल्लाह हम लोग आपके लिए हमेशा रेडी है। अगर आप लोग कुछ सजेशंस भी, आप लोग कुछ और इसके अलावा कुछ और स्किल सेट सीखना चाह रहे हैं तो बताइए, इंशाल्लाह हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करके कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। चाचा ने मुझे एक मैसेज आप लोगों को कन्वे करने के लिए बताया है, मतलब उन्होंने तो आ नहीं सके, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं भी। तो आप लोग ये टेलरिंग सेंटर वगैरह पे जो चल रहा है अपना टेलरिंग है, जितने भी लोग का कंप्लीट हुआ है कोर्स, उनके लिए माशाल्लाह एक खुशखबरी है।
आने वाले 15-20 डेज में आप लोग को मशीन्स वगैरह भी मिलेंगे जिसके जरिए से आप लोग का कमाने का जरिया भी मिलेगा। और जैसे माशाल्लाह मैं मशीन पर दिखाया पूरा आपका टेलरिंग रिकॉर्ड वाला छोटे आप लोग मिनिएचर्स बनाए उसके, तो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो आप लोग की सोच बड़ी रखिए, ऐसा यहाँ पे अपन छोटा टेलरिंग करके नहीं, बस आप लोग बड़ा करिए, कुछ अपना आप लोग का आइडिया हम लोग के सामने रखिए, हम लोग ये करना चाह रहे हैं, इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगता है या जो भी है, आप लोग आगे तो बढ़िए, हम लोग के सामने आइडिया रखिए, इंशाल्लाह वो चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि फैशन इंडस्ट्री है, आप लोग अपने दायरे में रह के अपन अपने हिजाब में रह के भी कर सकते हैं ये चीज़ें, तो इसके ऊपर फोकस करिए। आपके पास एक मशीन एक जरिया मिल गया तो उसको फोकस करके आप लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मशीन की डिस्ट्रीब्यूशन भी 15-20 डेज में रहेगी, जिससे आप लोग का एक जरिया बनेगा इंशाल्लाह। तो मुझे चाचा ने कहा था कि आप लोग बताने के लिए इंशाल्लाह।